Good morning, dear students. In the previous class, we had started with the chapter of biomolecules. In this chapter, we had discussed a test that is known as chemical analysis. In chemical analysis, we separate out the acid soluble pool from the acid insoluble pool. Now, these substances, that is, these acid soluble pool consist of which substances that we need to understand. So, acid soluble pool will be having presence of both organic as well as some of the inorganic molecules. जब हम organic molecules की बात कर रहे हैं तो organic molecules में जो acid soluble pool में है वो सारे ही monomers होते हैं. Monomers मतलब single unit जिनका molecular weight बहुत ही कम है और उनकी conformation जो होती है वो भी काफी simple होती है. तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो मोनोमर्स हैं, उनमें एमिनो एसिड्स, शुगर्स या तो फिर हम कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, ऐसे सब्सटेंसेस इंक्लूड होते हैं. इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कैल्शियम, फॉस्फेट्स, क्लोरीन जो भी उस टिश्यू में प्रेजेंट है वो सब इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में आएगा. द सेकंड थिंग व्हिच वी गेट वाज द एसिड इनसॉल्युबल पूल. और एसिड इनसॉल्युबल पूल में सारे ही पॉलीमर्स आते हैं. पॉलीमर्स आर फॉर्म by the union of the monomers. मतलब कई सारे monomeric units they unite together and they form a polymer. जैसे कि sugars के combination से बनता है polysaccharide, amino acids के union से बनता है proteins, right? तो ऐसे जो substances है large size वो हमें acid insoluble pool में मिलते हैं. तो chemical analysis में हमने mostly जो monomeric units थे उनको polymeric unit से सेपरेट कर दिया. इसके अलावा analytical techniques जो थी they were useful for identifying the structure, the molecular structure or the formula of that particular substance. Elemental analysis was a destructive method to separate out the inorganic content present in the tissue from the organic, जिसमें organic content जो है that gets evaporated, whereas जो inorganic content है it is obtained in the form of ash. तो ये सारी चीजें हमने turn by turn discuss की है in the chapter that is introduction to the biomolecules. Now when we talk about biomolecules, these are all carbon containing substances that are present in a living organism. एक organism में जो भी carbon containing substances हैं ये सारे ही बनते हैं मिलके biomolecules. तो जब हम एमिनो एसिड कहते हैं तो भी वो एक बायोमोलिक्यूल है. जब हम शुगर कहते हैं या प्रोटीन कहते हैं या पॉलीसैकेराइड कहते हैं वो सारे ही किसमें इंक्लूड होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स में इंक्लूड होते हैं. अब जब हम बायोमोलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो जो मोनोमेरिक सब्सटेंसेस थे दे वर कंसीडर्ड अंडर माइक्रोमोलिक्यूल्स, whereas those which were larger in the size they were known to be the macromolecules. तो जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है वो मैक्रोमोलिक्यूल है और जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही कम है वो होते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स. सो इन दिस चैप्टर वी आर फर्स्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स. हम माइक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में बात करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से. अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है उनमें तीन टाइप्स होते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड. इनमें से पॉलीसैकेराइड जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स में आते हैं जबकि the monosaccharides and oligosaccharides they are considered in the micromolecules. तो हम हमारा हेडिंग कॉमन ही दे देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स and then we will discuss about what are actually carbohydrates consisting of. So we will be writing the heading carbohydrates. In this way we are going to discuss not only carbohydrates but we will discuss amino acids, we will discuss nucleotides, we will discuss about proteins and nucleic acids also as well as lipids. So carbohydrates होते हैं organic substances और ये organic substances में आ जाता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. So they are made up of कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन.
carbon. Another thing about carbohydrates is that carbohydrates will be, they are considered to be मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ साथ आल्डिहाइड या तो कीटोन ग्रुप होता है. सो दीज आर हाइड्रोक्सिल आल्डिहाइड्स और कीटोन्स. मतलब एक कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसमें आइदर आल्डिहाइड ग्रुप रहता है या तो फिर कीटोन ग्रुप रहता है. इन दोनों में से कोई एक ग्रुप, राइट. आल्डिहाइड मतलब हम क्या कहते हैं, CHO, और कीटोन मतलब CO. तो आल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप होता ही है. अगर आल्डिहाइड ग्रुप होता है तो वो टर्मिनल पोजीशन पे होता है, और अगर कीटोन ग्रुप होता है तो वो इंटरमीडिएट मतलब सेकेंड पोजीशन पे होता है. सो दिस आल्डिहाइड is at terminal location, and if it is ketone it will be somewhere intermediate and mostly at position number 2. तो कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन टू बी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, and these are containing hydroxyl aldehyde group or a ketone group. मतलब either a sugar can be aldose sugar or a sugar can be ketose sugar. aldose sugar तब कहा जाता है जब aldehyde group होता है, और ketose sugar तब कहा जाता है जब ketone group होता है. अगर aldehyde group है तो वो सबसे टर्मिनल पोजीशन पे ही होगा, और अगर कीटोन है तो वो हमेशा इंटरमीडिएट पोजीशन पर ही प्रेजेंट होता है. तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनकी जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज CnH2ON. The general formula for the carbohydrates is CnH2ON. अब हम ऐसा क्यों लिखते हैं CnH2ON? तो Cn मतलब कार्बन, फॉर एग्जांपल मिनिमम कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम एटलीस्ट 3 कार्बन. मतलब सबसे जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है उसमें भी एटलीस्ट 3 कार्बन तो होते हैं. ठीक है, तो अगर हम C3 लिखते हैं तो हाइड्रोजन जो है वो उसके डबल होंगे. मतलब हाइड्रोजन विल बी 6 and oxygen is again going to be 3. So C3H6O3. तो सबसे simplest जो sugar है it will at least have 3 carbons. So number of carbon and oxygen is same, but number of hydrogen to oxygen, that is the ratio of hydrogen to oxygen is always 2:1. The ratio of hydrogen to oxygen मतलब हमेशा अगर 6 ऑक्सीजन है 6 हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन कितने होंगे 3, राइट. तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशियो ऑलवेज इज गोइंग टू रिमेन 2:1 फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, आगे बढ़ते हैं. तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये 3 तरह के होते हैं. मतलब आइदर दे आर वेरी सिंपल विद लो मॉलिक्यूलर वेट or they are more complex with higher molecular weight. Okay, so carbohydrates can be either simple carbohydrates or complex carbohydrates. When we say simple carbohydrates, these simple carbohydrates means they have lower molecular weight and they are soluble, that is solubility जो है उनकी ज्यादा रहती है. So simple carbohydrates are more soluble in water itself, as well as they are having less molecular weight, whereas जो complex होते हैं they are completely insoluble and they are less, नहीं इसकी जगह पे अब क्या आएगा, more in its molecular weight. क्योंकि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो होते
जबकि कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो सिंपल शुगर्स नहीं कहलाते, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जैसे कि उनमें बहुत ही लॉन्ग चेन होती है ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स, एक नहीं होता, मल्टीपल मोनोमर्स विल बी यूनाइटिंग टू फॉर्म अ पॉलीमेरिक सब्सटेंस, और इसी की वजह से इनका वेट जो है वो ज्यादा बनता है, राइट। जैसे कि ग्लूकोज जो है वो एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, पर स्टार्च जो होता है, ये स्टार्च क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, राइट। तो स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, हमारी बॉडी में शुगर स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं स्टार्च, तो स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जबकि ग्लूकोज जो होता है या सुक्रोज होता है या लैक्टोज होता है, ये शुगर्स कैसे होते हैं, सिंपल शुगर्स होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स मिलते कहाँ पे, तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें प्लांट जो है दे आर द बेस्ट सोर्स फॉर मेकिंग द कार्बोहाइड्रेट्स, तो प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं तो वो बनाते हैं स्टार्च, एंड स्टार्च इटसेल्फ इज अ पॉलीमेरिक सब्सटेंस ऑफ ग्लूकोज। तो ये जो स्टार्च है वो क्या हुआ, वो एक कार्बोहाइड्रेट होता है। तो फोटोसिंथेसिस के एंड प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब सिंपल की बात करें तो सिंपल शुगर्स जो है दे आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज monosaccharides and oligosaccharides. Monosaccharides and oligosaccharides. Monosaccharides कब कहा जाता है, जब शुगर का एक सिंगल यूनिट प्रेजेंट हो तो मोनोसैकेराइड कहा जाता है, और ओलिगोसैकेराइड मतलब when there are 2 to 7 monosaccharides in a chain they form a oligosaccharide। कितने, 2 to 7। तो यहाँ पे एक सिंगल मोनोमेरिक यूनिट है, जबकि यहाँ पे क्या है, 3 to 7 monomers will be attaching to each other to form a short chain. This short chain itself is known as oligosaccharide, राइट। और कॉम्प्लेक्स जब हम बोलते हैं तो कॉम्प्लेक्स शुगर्स में आ जाते हैं पॉलीसैकेराइड्स। कॉम्प्लेक्स शुगर में क्या इंक्लूड होता है, पॉलीसैकेराइड। शुगर इटसेल्फ इज नोन एज सैकेराइड, शुगर के लिए टर्म यूज किया जाता है सैकेराइड, ओके। तो यहाँ पे मोनोसैकेराइड्स होते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स, तो ये दोनों किसमें इंक्लूड होते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स, जबकि पॉलीसैकेराइड इज अ मैक्रोमोलिक्यूल। तो यहाँ पे हम पहले माइक्रोमोलिक्यूल से ही स्टार्ट करने वाले हैं, पर उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज कि कार्बोहाइड्रेट है, जैसे कि मैंने कहा कि ओलिगोसैकेराइड है, उसमें क्या होता है कि 3 से ज्यादा, मतलब 2 या 3 या 4 मोनोमर्स एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। तो मोनोमर्स अटैच होने के लिए बीच में कोई बॉन्ड तो होना चाहिए, तो ये बॉन्ड को कहा जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, राइट। सो बॉन्ड बिटवीन, आई एम मेंशनिंग इट ओवर हियर, 2 to 7 units of monosaccharide will be forming an oligosaccharide। तो 2 to 7 यूनिट्स हैं मोनोसैकेराइड के, जिनको मिला के ओलिगोसैकेराइड बनाना। तो ये मिलेंगे तो बीच में कुछ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ये जो बॉन्ड होता है उसे कहा जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ glycosidic bond, formation of glycosidic bond by condensation of 2 monosaccharides। अब दो जब मोनोसैकेराइड्स होते हैं when they combine with each other, तो मोनोसैकेराइड्स जब कंबाइन होते हैं तो दे शेयर सर्टेन इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू व्हिच दे विल बी इन्वॉल्विंग इन अ बॉन्ड फॉर्मेशन, और इस बॉन्ड को कहा जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यही बॉन्ड किस और में प्रेजेंट होता है, पॉलीसैकेराइड में, क्योंकि यहाँ पे तो थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स होते हैं एक साथ, यहाँ पे तो सिर्फ कितने हैं, 2 to 7 monosaccharides। When there are thousands of monosaccharides attached to one another, there will be bond between all of them, and this is known as what, polysaccharides, okay। तो monosaccharides के बारे में यहाँ
monosaccharides. So we will see that what are the types of monosaccharides and what are the different examples of monosaccharides. So as we said that carbohydrates are of three types: monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides, out of which polysaccharides are complex in structure and with more molecular weight, and therefore polysaccharides are considered under macromolecules, or we can say acid insoluble pool. We are now going to discuss about the first micromolecule, that is monosaccharides and oligosaccharides, which are also commonly known as sugars. So monosaccharides, we are first going to discuss about the micromolecule, that is monosaccharide. Now monosaccharides are the simple sugars. Minimum, the monosaccharide is going to begin with at least 3 carbons, and this 3 carbon sugar is known as a triose sugar. Okay, so monosaccharides, when we say monosaccharides, certain things remain the same. They are made up of carbon, hydrogen and oxygen, and the general formula for monosaccharides is CN H2N ON. The general formula for monosaccharides is carbon, that is n number of carbons, 3 carbon, 4 carbon, 5 carbon, 6 carbon and 7 carbon monosaccharides are commonly found. Double will be the number of hydrogen and number of carbon and oxygen will be remaining the same. So these monosaccharides are the simple sugars which begin from at least 3 carbons. तो ये 3 कार्बन की शुगर जो है उसे कहा जाता है ट्रायोज शुगर. इट इज नोन एज ट्रायोज शुगर. सो ट्रायोज शुगर के लिए फॉर्मूला हो जाएगी C3H6O3. द फॉर्मूला फॉर द ट्रायोज शुगर विल रिमेन C3H6 and O3. So let us first understand what will be the example. So example of triose sugar is glyceraldehyde and dihydroxy acetone. dihydroxy acetone. तो मैंने पहले ही कहा है कि ये जो मोनोसैकराइड्स है या कोई भी कार्बोहाइड्रेट है, either it will have an aldehyde group or it will have a ketone group. If it is having an aldehyde group, तो it will be known as an aldose sugar. तो यहाँ पे glyceraldehyde जो है, it is an example of aldose sugar, whereas dihydroxy acetone is an example of ketose sugar. Okay, so how the structure of glyceraldehyde is going to be? The first position will be the aldehyde, because if, as I said, अगर aldose group है तो terminal position पे होगा, अगर ketose group है तो intermediate position पे होगा. तो first position aldehyde group की रहेगी, second position will be HCOH, and at the third position there will be CH2OH. Okay, so there are 3 carbons, as you can see, 1, 2 and 3 carbons. Double will be the number of hydrogen, right? So here you can see 1, 2, 3, 4, 5 and 6 are the hydrogen, and there will be 3 oxygen. So that is why triose sugar की formula होती है C3H6O3. The second type of monosaccharides are the triose, मतलब 3 कार्बन. तो next जो है that will be tetrose sugar, and tetrose sugar that will be of the 4 carbons. These sugars are going to be of the 4 carbons, that is C4H8O4. Okay, so number of carbon and oxygen are going to be 4, whereas the number of the hydrogen are double the number of the carbon, right? Because the ratio of hydrogen to oxygen was 2:1. So that is the tetrose sugar. तो tetrose sugar जो है वो बायोलॉजिकली इतनी इम्पोर्टेंट कम है, क्योंकि बहुत ही कम शुगर्स ऐसी हैं
जो टेट्रोज में इंक्लूड होती है, जबकि ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है ये दोनों ही कहाँ पे होते हैं, तो जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उनमें बनता है 6 कार्बन ग्लूकोज, पर ये जो ग्लूकोज है वो डायरेक्टली नहीं बनता, पहले बनते हैं 2 मॉलिक्यूल्स 3 कार्बन ग्लिसरॉल्डिहाइड के। तो हम ये कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस की इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स जो हैं वो होती है ट्रायोस शुगर। फोटोसिंथेसिस की इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होती है ट्रायोस शुगर्स। ओके, द नेक्स्ट टाइप ऑफ शुगर दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट, इट इज कॉल्ड एज द पेंटोज शुगर। तो पेंटोज शुगर जो है इनमें जनरल फॉर्मूला है C5H10O5, राइट, 5 कार्बन शुगर है इसीलिए C5H10O5। तो ये जो 5 कार्बन पेंटोज शुगर है इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल आएगा राइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर। ओके, तो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आरएनए एंड डीएनए। तो आरएनए में जो शुगर प्रेजेंट होती है वो राइबोज होती है और डीएनए में प्रेजेंट होती है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर्स होती है। तो 5 कार्बन शुगर को हम पेंटोज शुगर कहेंगे। एंड देन आफ्टर वी हैव 6 कार्बन शुगर्स आल्सो। These 6 carbon sugars are known as hexose sugar. Hexose sugar सबसे ज्यादा कॉमन होती है और ये सबसे ज्यादा बार हम यूज भी करते हैं, that is C6H12O6. ओके, तो hexose sugar जो है it is including examples like glucose, राइट, ग्लूकोज जो है वो हेक्सोज शुगर है, फ्रुक्टोज इट इज आल्सो एन हेक्सोज शुगर, राइट। तो ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, ये सारे 6 कार्बन शुगर्स होते हैं और इनकी जनरल फॉर्मूला C6H12 और O6 रहती है। तो जब हम हेक्सोज और पेंटोज शुगर की बात करते हैं तो ये दोनों ही शुगर 2 फॉर्म में एग्जिस्ट होती है, जिसे कहा जाता है पाइरेनोज रिंग और another word, another way they are arranged is known as furanose ring. अब मैं आपको बताती हूँ कि क्यों पाइरेनोज या क्यों फ्यूरानोज, but before that let us see 7 carbon sugar that is हेप्टोज शुगर। तो हेप्टोज शुगर जो है इसमें आ जाएगा C7H14O7, this will be the हेप्टोज शुगर। ये भी बहुत ही कम होती है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख देती हूँ मैं, स्टीरोहेप्टुलोज। मतलब मोनोसैकेराइड में कितने कार्बन हो सकते हैं, 3, 4 कार्बन, 5, 6 या 7 कार्बन तक शुगर्स मोनोसैकेराइड्स में होती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हम ग्लूकोज की बात करते हैं, तो ये जो पेंटोज और हेक्सोज शुगर्स हैं, पेंटोज एंड हेक्सोज शुगर exist in 2 forms, 2 फॉर्म में एग्जिस्ट होती है, either पाइरेनोज और फ्यूरेनोज। ये दोनों ही रिंग स्ट्रक्चर्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम शुगर की बात करते हैं तो शुगर के 2 फॉर्म होते हैं, either it is a straight chain or it is a ring structure। तो शुगर्स जो होते हैं वो स्ट्रेट चेन के फॉर्म में भी होते हैं और रिंग के फॉर्म में भी होते हैं। अगर ये रिंग के फॉर्म में है तो 2 रिंग्स हो सकती है, पाइरेनोज रिंग और फ्यूरेनोज रिंग। अब हम पाइरेनोज रिंग जब कहते हैं तो पाइरेनोज रिंग में 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन आता है, जैसे कि ये जो मैंने रिंग ड्रॉ की, राइट। अब ये रिंग जो है इसमें मैं लिख देती हूँ HOH। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने डायरेक्टली ये रिंग कैसे बनाई है। इसे कहा जाता है, ये रिंग में कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 और 5, राइट। तो रिंग में जब 5 कार्बन है तो उसे क्या कहा जाता है, पाइरेनोज रिंग। रिंग में जब 5
पेंटोज शुगर होते हैं वो मोस्टली किस फॉर्म में होते हैं, दे आर इन द फ्यूरेनोज फॉर्म, जबकि हेक्सोज शुगर जो होते हैं वो मोस्टली किस फॉर्म में होते हैं, पाइरेनोज रिंग के फॉर्म में होते हैं। अब हमने ये कैसे ड्रॉ किया, तो उसको समझने के लिए हमें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, राइट। तो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहला आता है एल्डिहाइड ग्रुप, फिर आ जाता है HCOH, फिर आ जाता है OHCH, HCOH, HCOH and CH2OH. This is a generalized structure of the glucose, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, इसे कहा जाता है स्ट्रेट चेन फॉर्म और इसे कहा जाता है रिंग फॉर्म। तो कोई भी शुगर होती है वो दो फॉर्म में हो सकती है, आइदर चेन फॉर्म में हो सकती है या तो रिंग फॉर्म में, पर रिंग फॉर्म पॉसिबल सिर्फ किसके लिए है, पेंटोज शुगर और हेक्सोज शुगर। 3 कार्बन 4 कार्बन में रिंग स्ट्रक्चर्स नहीं होते, राइट। इसे कहा जाता है हैवर्थ एंड फिशर प्रोजेक्शंस, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हो या शायद आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो हैवर्थ और फिशर प्रोजेक्शन में यही आता है दैट वेदर इट इज फाउंड इन स्ट्रेट चेन फॉर्म और इट इज फाउंड इन द रिंग फॉर्म। अगर रिंग है तो हमने क्या किया है कि CHO इज द फर्स्ट ग्रुप, राइट। तो यही चीज अटैच हो जाएगी फर्स्ट कार्बन पे, कार्बन, हाइड्रोजन एंड OH। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे HCOH, थर्ड पोजीशन पे है OHCH। मतलब इन शॉर्ट जो भी कुछ लेफ्ट साइड पे है वो सब ऊपर की तरफ लिखा है और जो भी कुछ राइट साइड पे है दैट इज रिटन एट द बॉटम। In this way ring structures are there, though we don't have these things in NCERT, but we should just have a look on it that how these structures are. अगर ये OH नीचे की तरफ होता है तो इसे कहा जाता है अल्फा शुगर। क्या कहा जाता है, अल्फा शुगर, राइट। अगर OH नीचे है तो अल्फा शुगर और अगर ये ऊपर है तो उसे कहा जाता है बीटा शुगर। तो इस तरह अल्फा और बीटा शुगर जो है ये भी प्रेजेंट होते हैं। नॉट गोइंग इनटू दैट मच डिटेल, अभी के लिए आप सिर्फ याद रखो कि पेंटोज और हेक्सोज शुगर जो है वो चेन और रिंग दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, राइट। अगर रिंग है तो दो तरह की रिंग होती है, पाइरेनोज रिंग और फ्यूरेनोज रिंग। पाइरेनोज रिंग जो होती है ये पाइरेनोज रिंग में 5 कार्बन रिंग में होते हैं और एक ही ऑक्सीजन होता है रिंग में, जबकि फ्यूरेनोज रिंग में सिर्फ 4 कार्बन होते हैं और एक ऑक्सीजन रिंग में प्रेजेंट होता है, right? In the next class we will further discuss about these sugars and we are going to discuss about oligosaccharides.